And dear learners, welcome to your own online classes of study journey. So dear students, as you know, this classes has been started with the initiative of SRPS, your own Shriram Public School, and here I am taking up your English grammar sessions. Dear student, as you know, your English grammar sessions are being taken by your one and only Soumya ma'am, teacher at SRPS, and we were on the topic of vocabulary enrichment, which will help you in scoring 100 out of 100 in your all the papers. Before starting up of today's session, first of all, I would like to wish you all a very warm welcome in your own channel study journey. So dear students, as you know, we are meeting up after a long time gap, so I hope that you all are quite well, healthy and safe at your home and has used this time, this gap productively, learn something new. As you know, we were covering up the topic of vocabulary enrichment, in which we have already discussed about the one word substitution, and today we will discuss the another important part of the vocabulary enrichment, that is synonyms. So before starting of that, let me remind you, dear learners, that these topics of vocabulary enrichment are very much important for your all, not only for your examination, not only it will help you to score 100 out of 100 in your examination, but also helps you in various quizzes, olympiad that are held by schools and various organization, institution at different interval, and you can win. And when you have a good vocabulary, a qualitative and quantitative vocabulary, then yes, you will able to score more mark than your competitor, and obviously you will be going to win the awards. Vocabulary enrichment, which we already discussed, means that the increase in quantitative and quality of your vocabulary will help you not only for your exams, not only for your quizzes, not only for your competitive exam that you are going to face in future, but also very much important in your day-to-day life. If you are using the vocabulary database in your English essays, compositions, and comprehension notices, letter, whatever you are attempting in the exam, it will give a more better impression to the examiner. As well as when you speak these words, rich लैंग्वेज, जब आप बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में इस वोकैबलरी को इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वोकैबलरी इतनी रिच होगी, आपका डाटा बेस वोकैबलरी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि हर कोई आपको इंग्लिश को अप्रिशिएट करेगा. यू विल बी ऑब्वियसली अर्निंग द क्लैप्स, द अप्लॉजेस फ्रॉम द people. Let's come to our topic of today's vocabulary enrichment session, that is synonyms. Yes, my dear students, as my dear learners, as you know, we are very much concerned with the pronunciation also of English, so that you can improve your essence of English speaking. So do to pronounce the difficult words after me so that you can improve your pronunciation even. So synonym मतलब क्या होता है? तो synonym मतलब dear students होता है word that have same meaning. जैसे कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिसका समान अर्थ होता है. तो वो सेम अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, द वर्ड्स हैविंग कॉमन मीनिंग आर नोन एज synonyms. The words having same meaning are known as synonym. Here I am telling you trick. As you know, in every lecture we are discussing some or other tricks which can help you remember the things in exam. So आपके एग्जाम में अगर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि mention the synonyms and mention the antonyms, और आपको यही नहीं पता कि synonyms और antonyms का मतलब क्या होता है, किसका मतलब अपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं और किसका मतलब सेम मीनिंग्स वाले वर्ड होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑब्वियसली आप आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर देंगे. तो इसलिए ट्रिक्स कैसे याद करते हैं कि यहाँ पे पहले एस लिखा हुआ है, तो जब भी एस लिखा हुआ होता है तो मतलब कि सेम मीनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. जब एंड, तो इसी के अपोजिट आपका जब एस नहीं लिखा है, जब आपका ए लिखा है, तो मतलब कि अपोजिट मीनिंग के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि विलोम शब्द के बारे में बात कर रहा है. उसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंटोनिम्स क्या होते हैं. पर अभी का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली कंसंट्रेटेड है सिनोनिम्स में, मतलब कि सेम मीनिंग वाले वर्ड. जैसे कि कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, किड्स को हम और क्या कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो वर्ड्स हैं पर उनका मीनिंग सेम है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं पर मीनिंग सेम है, और यही होते हैं सिनोनिम्स. एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. जैसे कि गिफ्ट जो बर्थडे या पार्टीज़ में मिलता है आपको, उसे दूसरा शब्द में क्या कहते हैं, येस वी से इट एज प्रेजेंट. तो ये भी हमारा क्या है, ये सिनोनिम्स है, मतलब कि मीनिंग सेम है पर वर्ड्स अलग अलग हैं. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ सिनोनिम्स को देखेंगे जो कि डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके वोकैबुलरी और
स्पीकिंग और राइटिंग कैपेसिटीज़ को भी इंक्रीज करेगा. सो लेट अस स्टार्ट इट. Here we are going to discuss the important synonyms, the daily use synonyms of today's session. Let us see them one by one. Here is your synonyms, the bank of synonyms, you can say lot of the synonyms which you can use, which you can learn. And as I have already told you in earlier lecture of vocabulary enrichment that I am not asking you to learn or to by heart all this things, all this vocabularies all of at once. Need to divide it into small पैकेट्स एंड देन लर्न इट. जैसे कि आपको ये जो है, ये जितने भी सिनोनिम्स है उसको डेली जो है आप 5 का एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, और उसको 5 को लर्न कीजिए. फिर दूसरे दिन आप नेक्स्ट 5 को लर्न कीजिए. मैं कभी नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप एक साथ याद करिए. आई माई सेल्फ नो दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल कि एक बार में सब कुछ याद हो जाए. नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो आप डिफरेंट आप एक दिन में 5 मिनट्स को याद कीजिए, ठीक है, फिर दूसरे दिन लेक्चर दोबारा सुनिए और फिर से अगले 5 सिनोनिम्स को याद कीजिए. ऐसे धीरे धीरे करके आप देखोगे कि 10 से 15 दिन के टाइम गैप में आपको ये सारे मीनिंग अपने आप बाय हार्ट हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे, आपके टिप ऑफ द टंग पे रहेंगे और आपको जो है स्पेशल कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको सुबह या शाम या जब भी आपको मौका मिले 5 मिनट्स निकालना है और ये 5 सिनोनिम्स को डेली जो है मेमोराइज़ करते जाना है. चाहे अगर आप ऐसे ही मेमोराइज़ कर सकते हो ऐसे ही कर सकते हो, और लिख के मेमोराइज़ करना चाहो तो वेल एंड गुड. सो let us start our discussion of synonyms one by one. The word of the today's synonym session is abandon. Abandon मतलब क्या होता है? छोड़ देना. तो आप देख सकते हैं वर्ड क्या है abandon और इसका समानार्थी क्या है, सेम मीनिंग वाले शब्द क्या है, और desert. तो लीव और desert का मतलब भी यही होता है, छोड़ जाना. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं पर उसका मीनिंग जो है वो सेम है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं. सेम मीनिंग वाले वर्ड्स कहते हैं या फिर हिंदी में हम इन्हें समानार्थी कहते हैं जिसका अर्थ समान होता है. Now let us see further more synonyms which are very important and used in daily life which will enrich your vocabulary. So the second one synonym here is abundant. So you can see that you have to focus on the pronunciation also to learn the accent of English speaking. सो अबेंडेंट मीन्स होता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है. तो इसका सिनोनिम क्या है? प्लेंटीफुल. प्लेंटी मतलब आपको पता ही है ज़्यादा, तो प्लेंटीफुल और अबेंडेंट सेम मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा. थर्ड वन इज़ एब्रीवेट, मतलब किसी चीज़ को छोटे फॉर्म में लिखना. जैसे कि हम लोग श्री राम पब्लिक स्कूल को लिखते हैं ना SRPS शॉर्ट फॉर्म में, तो उसी को हम कहते हैं एब्रीब्रिएट. तो इसका सिनोनिम क्या है? शॉर्टन. नेक्स्ट वन सिनोनिम इन टूडेज़ क्लास इज़ अक्लेम, जिसका मतलब होता है प्रेज, मतलब कि किसी की प्रशंसा करना. कोई फर्स्ट रैंकर होता है क्लास में तो आप बोलते तो टीचर उसको प्रेज करती है ना, तो दैट इज़ ओनली अक्लेम मीन्स प्रशंसा करना. देन अफेक्शनेट. अफेक्शनेट मतलब कि प्यार जताना, लविंग. ओके, माई लविंग फादर, माई लविंग सिस्टर, माई अफेक्शनेट ब्रदर, ठीक है, मतलब कि प्यार से, हम प्यार के साथ बोल रहे हैं. देन अलाउ, किसी को आने के लिए अलाउ कर देना, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमिट कर देना. द टीचर परमिटेड द स्टूडेंट टू कम इन. सो सेम टाइम आई एम टेलिंग यू द सेंटेंसेस ऑल्सो हाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस आउट ऑफ दीज वोकेबलरी वर्ड्स. Then our next synonym of today's session is ancient. Ancient मतलब कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो बहुत ही पुराना होता है. Yes, what it is said as old. It is said as ओल्ड. एशियन मतलब क्या होता है? एशियन मतलब होता है ओल्ड. ओके, नेक्स्ट वन आवर सिनोनिम ऑफ द डे इज बियर, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉलरेट. देन बाउंटीफुल मतलब कि किसी के लिए बहुत ही दरिया दिली दिखाना, जनरस होना, ठीक है. द बॉय वॉज वेरी बाउंटीफुल और जनरस टू द स्ट्रीट डॉग्स. जो लड़का था वो जो स्ट्रीट में डॉग्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ही जनरस था, उनको रोज़ खाना वगैरह दिया करता था, उनकी बहुत केयर करता था. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट सिनोनिम, इट इज़ ब्रेव. ब्रेव मतलब आपको पता होगा ना कि जो बहुत ही डेयरिंग होता है, करेजियस होता है. द वॉरियर्स वेयर वेरी ब्रेव. इंडियन सोल्जर्स आर कंसिडर वन ऑफ द ब्रेवेस्ट आर्मी, जो बहुत ही करेजियस होते हैं, राइट. ब्रूटल. ब्रूटल मतलब बहुत ही बुरी तरीके से. क्रूएल और सैवेज मतलब कि जिस
जिसको बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूटल और क्रूएल। देन काम, काम मीन्स क्या होता है, पीसफुल एंड क्वाइट, जो बहुत ही शांतिपूर्ण हो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कैच। कैच मतलब पकड़ लेना किसी को, जिसको कहते हैं हम सीज कर लेना। ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ लेना उसे क्या कहते हैं, सीज करना। नेक्स्ट वन इज कॉशियस। कॉशियस मतलब क्या होता है, कॉशियस मतलब होता है कि बहुत ही सावधानी से चलना, केयरफुल। ओके, सेरेमोनियस मतलब कि किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, जिसे हम फॉर्मल भी कहते हैं। देन सर्कुलर, सर्कुलर मतलब पता ही होगा, जो सर्कल के फॉर्म में होता है और उसे क्या कहते हैं, राउंड। देन क्लीन, क्लीन का मतलब सबको पता है, साफ सुथरा, नीट। देन नेक्स्ट वन इज कमांड। कमांड का मतलब ऑर्डर देना। ठीक है, द कैप्टन कमांडेड द स्टूडेंट टू डिस्पर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ऑर्डर्ड। ठीक है, कॉन्साइज मतलब कि किसी चीज़ को छोटा कर देना। ठीक है, ब्रीफ कर देना, सिनिक्ट कर देना मतलब कि उसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। So this much is all about the today's session of synonyms, and we don't want to increase the length of this video, so we are ending our today's session here only. Further more synonyms we will discuss it our in next online session. Till then, dear student, stay at home, at your home, stay safe, and don't forget to like, subscribe and share your own channel Study Journey. Also comment down below that how much you like the video, and if you have any doubt then don't hesitate, and obviously you can comment in the comment box and get your doubt resolved. Stay home, stay safe. Jai Hind.